ہم عیسائی نہیں مسیحی ہیں۔ لگ بھگ 11ویں صدی کے قریب جب اسلام تلوار کے زور پر پھیل رہا تھا، پھر کیسے مسیحیوں نے ان کے ظلم کا صفایا کیا۔ 11ویں صدی سے پہلے مسیحیوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے مسیحیت کو پھیلانے کے لیے، اور 11ویں صدی کے بعد مسیحیوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے مسیحیوں کو بچانے کے لیے۔ اگر آج مسیحی یورپین مسیحی کروسیڈرز جنگیں نہ لڑتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، کیونکہ ان کا قرآن کہتا ہے کافروں کو مارو، ان کو قتل کرو۔ اگر مسیحی پوری دنیا پر قابض نہ ہوتے تو آج پوری دنیا کے حالات افغانستان یا پاکستان جیسے بن گئے ہوتے، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ایجنڈا یہی ہے کہ کرسچنز، ہندو یا کوئی اور دھرم کا انسان اپنی پراپرٹیز بنائے اور یہ ایک جھٹکے میں جہاد کرے اور سب سمپتی ان کی چھین لیں۔ اسے اصل اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال کشمیر فائلز فلم ہے۔ یہی حرکت مسلمانوں نے یورپ کے اندر بھی کی۔ کرسچنز نے بڑی محنت کے ساتھ، خون پسینے کے ساتھ اپنی کنٹریز کو کریٹ کیا، اور مسلمانوں نے جہاد کر کے ان کی سمپتی چھین لی اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیا۔ اسی وچاردھارا کو توڑنے کے لیے کروسیڈرز قائم ہوئے۔ اگر اسلام آج بھی اتنی طاقت میں ہوتا تو یقین مانیے آج بھی کافروں کی بیٹیوں کو، بیوی کو اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا ہوتا اور انسانی منڈیوں کے اندر انہیں بیچا جاتا۔ بات ہے مڈل ایجز کی، یعنی 1050 AD کی، جب مسیحیوں کا پوری دنیا پر بول بالا تھا، اور ایسٹرن رومن یعنی بیزنٹائن امپائر یہ ایک مضبوط کرسچن کنٹری تھی۔ پھر 11ویں شتابدی میں سلجوق ٹرکس بنائی گئی اور سنی مسلمانوں نے سلجوق ٹرکس بنائی، اور یہ لڑتے لڑتے عباسی حکومت تک آ گئے۔ اب عباسی حکومت کے قریب بیزنٹائن امپائر تھی، یعنی ایک رومی مسیحی حکومت قائم تھی، اور مسلمانوں نے اپنی اسلامی خلافت بنانے کے لیے کرسچن کنٹری کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یعنی بیزنٹائن امپائر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، ان کا شیطانی منصوبہ منزیکر کی لڑائی کے اندر پورا ہوا، 1071 AD کے اندر ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران بیزنٹائن امپائر اپنے بہت سارے علاقے ہار گیا، جس میں سے ایک علاقہ کا نام اناتولیا، اینٹیوک، نائسیا کا علاقہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ جی ہاں، یہ وہی نائسیا کونسل والی جگہ ہے جہاں پر مسیحیت کے بارے میں مسیحیوں نے بہت بڑے فیصلے لیے۔ یہ جگہیں مسیحیوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ 1092 AD میں سلطان ملک شاہ مر گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی حکومت کے کافی ٹکڑے ہو گئے۔ اب اناتولیا، اینٹیوک اور نائسیا مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور مسلمانوں نے تینوں شہروں کے لوگوں کے سامنے یہ شرطیں رکھی کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو اسلام قبول کر لو، نہیں تو ہمیں بھاری موٹی رقم جزیہ دو۔ اگر کسی کو جزیہ نہیں پتا تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جزیہ کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن منی، اور اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا تو آپ کی جان لے لی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو فوج کے اندر شامل کر لیا۔ سلطان شاہ کے مرنے کے بعد یہاں پر دوڑ لگ پڑی کہ اس سرزمین پہ کون اپنا سکہ جمائے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے مسلمان بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح بادشاہ کے بھی بہت سارے بچے تھے، لیکن بادشاہ نے اپنا اتر ادھیکاری کسی کو نہیں بنایا تھا، اس لیے یہ سبھی اپنے آپ کو اتر ادھیکاری سمجھ بیٹھے، یعنی جگہ کم تھی اور اتر ادھیکاری زیادہ تھے۔ اب یہ اور زیادہ اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کو بڑھانا چاہتے تھے، یعنی اپنے زمینی رقبے کو بڑھانا چاہتے تھے۔ 1095 AD کے اندر اناتولیا کے اندر مسلمان تھے۔ سلطان آف رم نے بیزنٹائن امپائر بادشاہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عام الفاظوں میں مسلمان بادشاہ نے کرسچن بادشاہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بیزنٹائن امپائر کے اندر ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا کانسٹنٹی نوپل، اور یہ قلعہ ایک بادشاہ کے نام پر بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اس قلعہ کے اندر ایک بادشاہ لیکسس فرسٹ کومنینوس رہا کرتا تھا۔ اس کو مسلمان بادشاہ یعنی سلطان آف رم کی طرف سے بہت سارے تھریٹس مل رہے تھے۔ کنگ لیکسس نے یعنی کرسچن بادشاہ نے بہت ساری کرسچن کنٹریز کو لیٹر لکھنا شروع کر دیے۔ 1095 AD کے اندر لیکسس فرسٹ کومنینوس نے
उन्होंने लेटर लिखे इन कंट्रीज को, जिनके अंदर रोमन, इटली, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, लियोन कासल और किंगडम ऑफ जर्मनी जैसे मुल्क शामिल थे। इसने सबसे कहा कि अगर आज हम इकट्ठे होकर ना लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें मिलिट्री एड दी जाए। सब लोगों ने किंग लेक्सस के लेटर को यानी उसकी बातों को इजी लिया और कोई भी मदद को आगे ना आया। 1054 एडी में पॉप अर्बन ने सोचा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए हम ईस्ट और वेस्ट के चर्चिस को इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब वेस्ट में कैथोलिक चर्चिस थे और ईस्ट में ऑर्थोडॉक्स चर्चिस थे। यहाँ उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम अपने मसीही शहरों को कैसे वापस लेंगे और ख़ास तौर पर यरूशलेम को जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ क्रिश्चियन नाइट के जरिए पूरे ईस्ट और वेस्ट में आर्मी अनाउंस की गई और इन सब ने फ्रांस की एक सिटी क्लरमोंट के अंदर इकट्ठे होना था। यहाँ पोप ने बोला कि सब लोग इकट्ठे हों और यहाँ पूरा यूरोप, ताकि हम इसराइल को मुसलमानों के कब्जा से छुड़ा सकें। पोप के इस ऐलान के बाद प्रोविंस किंगडम ऑफ इटली, रोमन इटली, लियोन कासल, नॉर्मंडी, फ्लैंडर्स, इंग्लैंड, किंगडम ऑफ जर्मनी, बोहेमिया, पोलैंड और जैसी कंट्रीज जुड़ गईं और पोप ने वहाँ एक डिवोशन दिया और पोप ने उस डिवोशन के अंदर कहा, बेशक कमाने को कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसा ना इज्जत, हमने सिर्फ आज़ाद करवाना है खुदा के घर को जो यरूशलेम के अंदर है और यही हमारी तौबा का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ यूरोपियन नाइट्स ने अपने दिल में अहद कर लिया कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है। जो हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह किए हैं उसकी मुआफ़ी परमेश्वर का घर आज़ाद करने की सूरत में मिल सकती है जो मुसलमानों के हाथे चढ़ चुका था। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि यरूशलेम को हर सूरत में आज़ाद करवाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाक जगह है और इस पाक जगह को मुसलमान अपनी नापाकी से नापाक कर रहे हैं। पोप की ये बातें लोगों के दिलों में घर कर गईं और लोग रोने लगे और पोप ने कहा ट्यूस वर्ल्ड 2 मरतबा उसने कहा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर की यही मर्जी है। इसके बाद पोप ने क्रॉस पर कलाम सुनाया। इसके बाद हज़ारों लोग जाने के लिए तैयार हो गए मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ जिसका नाम यरूशलेम है, ताकि मुसलमानों से लड़ें और अपनी ज़मीन वापस ले लें। अब लोग इतने ज़्यादा थे तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने क्रॉस के झंडे उठा लिए। जिन लोगों ने सलीबी झंडे उठाए थे इनको नाम दिया गया चर्च सिग्नेचर्स, जिसका मतलब है क्रूसिडर्स। यरूशलेम को आज़ाद कराने के लिए जन्म लिया क्रूसिडर ने, यानी पहली क्रूसिडर वॉर ने। अगर उमर ने अपने बेटे उमर बिन आस को कहा कि यरूशलेम की तरफ जहाद करके उसको जीत लो, तो आस ने यरूशलेम की तरफ जहाद का सिलसिला बढ़ाया। वहाँ पर एक पास्टर था जिसका नाम था स्पोर्नियस। उसने कहा ये जगह पाक है, हमें यहाँ जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यीशु की टीचिंग हमें ये नहीं सिखाती कि हम जंग करें। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट के ताबे रहना है। जब आप अपनी गवर्नमेंट के अंडर हैं और गवर्नमेंट आपको अधिकार देती है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, अब सेल्फ डिफेंस आपका कानूनी और धार्मिक राइट बन चुका है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जिसके पास तलवार नहीं वो अपना झोला बेचे और तलवार खरीदे। वो तलवार परमेश्वर यीशु ने इसी वजह से लोगों को कहा, अपने चेलों से कहा, ताकि बिला वजह किसी को मारा ना जाए बल्कि अपना सेल्फ डिफेंस किया जाए। आज भी हमारे चर्चिस के अंदर बहुत से पास्टर स्पॉनस बैठे हुए हैं जो कलीसिया को कायर बना रहे हैं। कलीसिया कायर नहीं है। हाँ, यीशु मसीह ने जरूर कहा है कि अगर कोई तेरे एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना, पर यीशु का ये मतलब नहीं था कि आप अपना सेल्फ डिफेंस करना छोड़ दें, बल्कि यीशु को मालूम था कि आपका दुश्मन तलवार वाला है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अपना झोला बेच और तलवार खरीद, ताकि तू अपना सेल्फ डिफेंस करने वाला बन सके। ये बात गॉस्पेल सुनाते वक्त की हो रही है कि अगर आप किसी को गॉस्पेल सुना रहे हो तो कोई आप पर आकर अत्याचार करे तो वो मसीह के नाम से सह लेना।
आके एक थप्पड़ के जरिए आप एक आत्मा जीत लें, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जान गंवा दें। आज आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज क्यों दुनिया में सबसे आगे हैं? क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के मामले में बहुत मजबूत हैं। दुनिया सारी नए से नया हथियार खरीदने के लिए उनकी तरफ देखती है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिहादी विचारधारा वाले लोगों का। जो कोई पास्टर इस वीडियो को देख रहा है, कृपया अपनी कलीसिया को कायर मत बनाइए, क्योंकि बिला वजह किसी का जुल्म सहना ये भी एक पाप है। पास्टर स्पोर्नियस की इस गलती की वजह से यरूशलेम 400 साल तक गुलाम रहा। अबू उबैदा ने उमर को खत लिखा कि जहाद मुकम्मल हो चुका है और यरूशलेम अब हमारे कब्जा के अंदर है, लेकिन पास्टर कह रहा है कि मैं चाबी उमर के हाथ में ही दूंगा। उमर ने उस्मान को आर्जी नाइब मुकर्रर किया और वो यरूशलेम आया और उसने आकर पास्टर स्पोर्नियस से चाबी ले ली यरूशलेम की, और ऐसे फॉल हुआ यरूशलेम का। मशहूर यही हुआ कि अगर अपनी ज़िंदगी को हेल फायर से बचाना है, यानी जहन्नम की आग से बचाना है, तो यरूशलेम को बचाना होगा, जो 400 सालों से मुसलमानों के हाथों से जल रहा था। इस वीडियो में हम क्रूसेडर्स की सिर्फ अच्छी बातों को ही नहीं डिस्कस किया जाएगा, जैसे मुसलमान अच्छी बातें करके अपने धर्म के बारे में लोगों को वर्गलाते हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला इस वीडियो के अंदर। बल्कि जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। जो क्रूसेडर्स ने अच्छे काम किए उन्हें भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और जो बुरे काम किए उनको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। पोप के इस डिवोशन के बाद बहुत मसला क्रिएट हुआ। पोप चाहता था सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग ही इस क्रूसेडर वॉर के अंदर हिस्सा लें, लेकिन लोगों में जोश इतना आ गया और उन्होंने अपने हाथों में क्रोसेस उठा ली और एक जुनून का समा छा गया। और बहुत सारे लोग, एक फ्रेंच पास्टर जिसने लोगों के अंदर आग भड़काई क्रूसेडर्स के लिए और वो लोगों का लीडर बन गया। राइनलैंड में कुछ क्रूसेडर्स ने पाक जगहों को बचाने के लिए यहाँ यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। तकरीबन 5000 मर्द और औरतें कत्ल हो गईं इस जंग के अंदर, लेकिन चर्च ने इस मैटर को कंडेम किया और इनसे पूछा गया कि इन्होंने आखिरकार इस जगह पर यहूदियों और उनकी बीवियों को क्यों मारा। इन्होंने सिर्फ यहूदियों को ही नहीं मारा सिर्फ, बल्कि जब ये सारी जगहों को क्रॉस करते हुए गुजर रहे थे, जब इनके पास खाने को कुछ ना मिला, तो उन्होंने हंगरी में एक क्रिश्चियन शहर को, जो वहाँ के नागरिक थे, उनको मारा और खाना और लूट मार की। इन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर के शहरों में भी कुछ ऐसा ही किया। बैजेंटाइन एम्पायर के राजा लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस ने जब देखा कि उनका कोई डिसिप्लिन नहीं, तो वो परेशान हो गया। अलेक्सिस ने फिर भी उन लोगों को अनातोलिया जाने दिया, ये जानते हुए कि इनके पास कोई जंग के स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, नो लीडरशिप है, और इन अनडिसिप्लिन लोगों से अपनी जान को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए इसने उनको वहां जाने दिया और ये सारे लोग वहां मारे गए सुल्जुक तुर्क्स के हाथों। द प्रिंस क्रूसेड। कुछ जागीरदार बहुत ताकतवर थे यूरोप के अंदर, इनके पास कुछ बेहतर असला था और कुछ लोग डिसिप्लिन भी थे और कुछ को ऑर्गेनाइज किया गया। ये यूरोप लॉरिन से निकले, गॉडफ्रे ऑफ ब्यूयोन, और ये अपने भाइयों के साथ था जिसका नाम यूस्टस और पॉल विद बोलाइन, और दूसरा था फ्रेंच किंग का यंग ब्रदर ह्यू ऑफ फॉर्मंडाइज, रॉबर्ट ऑफ फ्लैंडर्स, रॉबर्ट ऑफ नॉर्मंडी, सन ऑफ विलियम कॉनकर, स्टीफन ऑफ हुआ, और प्रोविंस से भी एक ताकत निकली जिसका नाम था रेमंड ऑफ टोलोस। इन सभी ने बैजेंटाइन एम्पायर तक पहुंचना था। ये कोई फौज 60,000 के करीब लोगों की थी। बैजेंटाइन एम्पायर लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस ने ये ख्याल भी नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी आर्मी आ जाएगी। इसका ख्याल था कि शायद छोटी सी आर्मी होगी वेस्टर्न कंट्री से जिसको मैं लीड करूंगा दिसंबर 1096 के अंदर। इसलिए लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस को इतनी बड़ी आर्मी देख के लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस नर्वस हो गया और डिस्ट्रस्टफुल हो गया। वो कहते हैं ना, दूध का चला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। यही हाल लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस का था, क्योंकि लास्ट हमला जो इसकी टेरिटरी पे हुआ था वो पीपल ऑफ क्रूसेड्स ने किया था, जो पैरामाउंट ऑफ ट्रेंटो पर हुआ था। और इसके दिमाग के अंदर आया कि अगर ये 60,000 आदमियों की आर्मी जो वेल डिसिप्लिन है, जिनकी लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये इस पर हमला कर दें तो इसकी कंट्री का क्या होगा। लेक्सिस फर्स्ट कॉम्निनोस ने इनको पैसा, खाना और गाइड किया और इसके बदले उनसे एक प्रॉमिस लिया कि जंग जीतने के बाद इसके मुल्क को, जो इसके मुल्क की जमीनें मुसलमानों के कब्जे के अंदर हैं, जंग जीतने के बाद वो वापस कर दी जाएंगी। और प्रिंस ऑफ क्रूसेडर इस शर्त पर मान गए।
اور جب क्रूसेडर्स बॉस्फोरस को क्रॉस करने लगे तो क्रूसेडर्स के पास बहुत बड़ी फौज थी, खास तौर पर आर्मर नाइट्स। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत गर्म था, जिसकी वजह से तमाम लोग बीमार होने लगे और मुसलमानों ने इस बात का फायदा उठाया और मुसलमान सिल्जुक तुर्क इन पर छापामार युद्ध करने लगे, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के रहने वाले थे जहाँ बहुत गर्मी होती है। लेकिन वेस्टर्न लोगों को यानी क्रूसेडर्स को गर्म मौसम की आदत नहीं थी, क्योंकि वेस्ट सारा ठंडा इलाका है। लेकिन अनातोलिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ बारिश भी बहुत कम होती थी, और अगर बारिश हो जाती तो क्रूसेडर्स के लिए वो मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाता था। लेकिन मुसलमान ऐसे माहौल के आदी थे, ऐसे मौसम के आदी थे, और इनको छुपने की जगहों का पता था, इसलिए छुप कर वार किया करते थे क्रूसेडर्स पे। 1097 AD में क्रूसेडर्स को एक फ़ायदा हुआ कि इस्लामिक वर्ल्ड और सिल्जुक टर्क्स के अंदर फुट पड़ गई। सीरिया, दमास्कस और एंटियोक के अंदर लड़ाई होने शुरू हो गई, और इस लड़ाई की वजह थी क्योंकि शिया लोग मिस्र के अंदर हुकूमत करना चाहते थे। लेकिन क्रूसेडर में से कोई भी तैयार ना था लड़ाई के लिए, यानी पहली क्रूसेडर वॉर के लिए, क्योंकि क्रूसेडर्स बीमार हो रहे थे और मुसलमान आपस में ही लड़े जा रहे थे, यरूशलेम के लिए, मिस्र के लिए और तुर्की के लिए। बीमारी के बावजूद क्रूसेडर्स ने अपने आप को रेडी किया और जंग के मैदान में उतरे। क्रूसेडर्स ने पहली फतह नाइसिया पर पाई। ये वही नाइसिया है जो कभी बैजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था। क्रूसेडर्स ने 6 हफ्ते इसको सीज किया और नाइसिया को 6 हफ्तों में जीत लिया। लेकिन यहाँ मुसलमानों ने एक शरारत की। ये जंग क्रूसेडर्स ने जीती थी, लेकिन लोगों ने बैजेंटाइन एम्पायर की फौज के आगे अपने घुटनों को टेक दिया। यही वजह थी कि क्रूसेडर्स बैजेंटाइन एम्पायर को धोखेबाज समझना शुरू कर दिया। इनका रिश्ता पहले जैसा न रहा, जबकि ये मुसलमानों की एक चाल थी। क्रूसेडर ने अपने जीत के सफर को जारी रखा। बहुत गर्मी में इन्होंने 2 जत्थे बना लिए आगे बढ़ने के लिए। गॉडफ्रे ऑफ बोहेमॉन्ड ऑफ ट्रेंटो, इन दोनों क्रिश्चियंस लश्करों को क्रूसेडर्स ने अपने आप को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। क्रूसेडर नाइट, क्रूसेडर इन्फेंट्री और तीसरा हिस्सा क्रूसेडर्स कैंप फॉलोअर। इस जगह पर मुसलमान घात लगाकर बैठे थे। अब जब तुर्किश मुसलमानों ने देखा कि क्रूसेडर्स की तादाद कम है तो इन पर अटैक करने लगे। इन्होंने अपने आप को 3 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया ताकि अगर क्रूसेडर नाइट, क्रूसेडर इन्फेंट्री और बहमॉन्ड विनगार्ड लड़ते लड़ते अगर ख़त्म हो जाएं, लेकिन क्रूसेडर्स कैंप वाले वापस भाग जाएं, क्योंकि इसके अंदर आम लोग थे जो क्रूसेडर्स का मनोबल बढ़ा रहे थे। अब जब क्रूसेडर्स ने तुर्कियों का अटैकिंग मूड देखा तो ये भी अटैक करने के लिए आगे आए, लेकिन जब इनकी आर्मी देखी तो ये डिफेंसिव मूड के अंदर चले गए। बहमॉन्ड विनगार्ड ने गॉडफ्रे ऑफ बोहेमॉन्ड यानी क्रूसेडर नाइट से कहा कि एक छोटा सा जत्था बनाओ, यानी फौज की एक टुकड़ी बनाओ और हमारी करीब की अलायंस के पास भेजो कि दुश्मन की फौज बहुत बड़ी है, इसलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। इस टुकड़ी को रवाना करने के बाद, इनको भेजने के बाद क्रूसेडर्स नाइट डिफेंसिव हो गए। जैसा कि क्रूसेडर्स नाइट आगे थे और पीछे क्रूसेडर इन्फेंट्री थी, जिन्होंने क्रूसेडर्स कैंप फॉलोअर्स के गिर्द डिफेंसिव घेराबंदी कर रखी थी कि खुदा ना करे कभी क्रूसेडर्स नाइट मारे जाएं तो क्रूसेडर्स इन्फेंट्री क्रूसेडर्स कैंप फॉलोअर्स की हिफाजत करते करते अपनी जान दे देगी। क्रूसेडर्स कैंप फॉलोअर्स ने दरमियान में सलीबी झंडा ऊंचा कर दिया कि जंग का मैदान तैयार है और क्रूसेडर्स अंडर अटैक हैं, यानी क्रूसेडर्स पर अटैक का खतरा है। और एक समय ऐसा आया कि तुर्की फौज यानी मुसलमान फौज ने इनको घेर लिया। अब क्रूसेडर्स नाइट क्रूसेडर इन्फेंट्री के साथ मिल गए और क्रूसेडर्स कैंप फॉलोअर्स ये सभी घबरा गए। ये 2-4 घंटे ऐसे ही सिचुएशन में फंसे रहे, लेकिन किसी तरह से क्रूसेडर्स ने इन्हें रोके रखा। उसी दौरान आखिरी लम्हों में बाजी पलट गई। गॉडफ्रे की जो सैन्य टुकड़ी गई थी यानी रेमॉन्ड, क्रूसेडर्स यानी गॉडफ्रे की मदद को पहुंचे। अब तुर्की के जो ट्रूप्स थे वो पैनिक हो गए। क्रूसेडर्स नाइट ने अचानक ही एक तरफ से और रेमॉन्ड ने दूसरी तरफ से हमला कर दिया। गॉडफ्रे यानी क्रूसेडर्स और रेमॉन्ड ने तुर्कियों की दौड़े लगवा दी, इनकी ठीक तरीके से मरम्मत की और ये क्रूसेडर्स के लिए एक मेजर विक्ट्री थी। अनातोलिया अब क्रूसेडर्स के कब्जा में था और जहां इनको छोटी तुर्की फौज मिलती वहां उनको मार कर भगा देते
تھے ये। ऐसा ही एक वाकया हेराकी एनातोलिया में हुआ। तुर्की के मुसलमानों को क्रूसेडर्स ने यहाँ भी लोहे के चने चबवा दिए। क्रूसेडर्स ने कुछ टाइम हेरेकिया के अंदर गुजारा और एक फौज का दस्ता यहाँ छोड़ा ताकि यहाँ के मामलात को संभाल सके। जबकि एनातोलिया बहुत बड़ा मुल्क था, इसलिए क्रूसेडर्स ने सोचा कि हम पूरे मुल्क का जायजा ले लें कि कोई घुसपैठिया एनातोलिया के अंदर तो नहीं। इसलिए क्रूसेडर्स ने ऊपर से जाने का फैसला किया क्योंकि सामने से हमला नहीं हो सकता था, और अगर मुसलमान फौज एनातोलिया के सामने से हमला करती तो क्रूसेडर्स उसे भी आसानी से शिकस्त दे देते। जो दस्ता क्रूसेडर्स ने वहां पर छोड़ा उसका नाम बॉल्डविन ऑफ बोलाइन था। जो सैन्य टुकड़ी क्रूसेडर्स ने वहां छोड़ी उसका नाम बॉल्डविन ऑफ बोलाइन था। इसने वहां पर रहते हुए तरसूस को भी अपने कब्जे में कर लिया और बाद में क्रूसेडर्स के साथ जुड़ गया। लेकिन बॉल्डविन ऑफ बोलाइन को लोकल आर्मीन क्रिश्चियंस ने इनवाइट किया ताकि एडिसा में आकर यहाँ के मामलात को ठीक करे, और इस तरह से ये जगह भी क्रूसेडर्स के अंडर आ गई। इस तरह एडिसा पहली कंट्री बनी कि जहाँ से क्रूसेडर्स अपनी हुकूमत कायम कर सकें, और ये पहली क्रूसेडर स्टेट बनी 1097 में। फिर क्रूसेडर्स एंटीओक गए ताकि अपनी हुकूमत का दूसरा कदम रख सकें क्योंकि इनका अगला कदम यरूशलेम था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि एंटीओक का खतरनाक मौसम इनके साथ क्या कर सकता है। 2 साल पहले पॉप के कहने पर ये जंगें शुरू तो हो चुकी थी। पहला क्रूसेडर वॉर एंटीओक तक पहुंच गया था। अभी एक मेन जंग बाकी थी। ये तुर्कियों का दूसरा बड़ा ट्रूप था जो क्रूसेडर और यरूशलेम के दरमियान खड़ा था, यानी क्रूसेडर के गोल के दरमियान तुर्किश आर्मी खड़ी थी। लेकिन एंटीओक का मौसम भी कुछ इनके लिए ठीक नहीं था। यहाँ पर 1000 फुट से बड़े पहाड़ थे, इसलिए क्रूसेडर की आर्मी ने बाहर की तरफ कैंप लगाया और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगे क्योंकि इनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी। इस पहाड़ी इलाका के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर खाना पहुँचना इनके लिए मुश्किल था, इसलिए जो कैंप फॉलोअर्स थे वो फाकों के अंदर रहने लगे। बर्दाश्त की भी एक इंतहा होती है, लेकिन अब क्रूसेडर्स की और कैंप फॉलोअर्स की मुश्किलातें इनकी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी और इखलाक की कदर कम होती चली जा रही थी। इनके इर्द गिर्द सारी मुसलमान फौज यानी तुर्की फौज थी, जिसकी वजह से सप्लाईज इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। कुछ सप्लाईज साइप्रस से आ रही थी। जो सप्लाईज साइप्रस से आ रही थी वो पूरी नहीं थी। जो अनाज साइप्रस से मिल रहा था समंदर के जरिए से, और साइप्रस को कंट्रोल बैजेंटाइन एम्पायर कर रहा था, जिसकी वजह से घोड़े क्रूसेडर्स और कैंप फॉलोअर्स एक बार फिर फाकों पर आ गए। क्रूसेडर्स की उम्मीद टूट रही थी और इंसानियत का मोराल गिर रहा था। दिन ब दिन क्रूसेडर्स की हालत ख़राब होती चली जा रही थी और फाकों की वजह से यहाँ पर डेथ रेशो बढ़नी शुरू हो गई। मार्च में क्रूसेडर्स फ्लीट ने इनको ज़रूरी सप्लाईज भेजी और बैटल ऑफ लेक के बाद तो क्रूसेडर्स की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। इनमें उम्मीद ख़त्म होती चली जा रही थी। 3 जून 1098 में आखिरकार एक रात बोहेमंड ऑफ ट्रेंटो ने अपने 60 आदमियों के साथ साउदर्न साइड का जायजा लगाया और टावर ऑफ 2 सिस्टर्स के कमांडर को कुछ घूस दे दी। अब बोहेमंड ऑफ ट्रेंटो के कुछ मर्द एंटीओक सिटी के अंदर गए और उन्होंने अंदर जाकर शहर का दरवाज़ा खोल दिया। अब क्रूसेडर्स शहर के अंदर आ गए और उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया, और मुसलमानों ने यहूदी औरतों और बच्चों और बूढ़ों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जैसे ये फ़लस्तीन में कर रहे हैं आज के टाइम पर। और मुसलमानों ने पूरी कोशिश की कि इनकी जान बच जाए और यहूदी मारे जाएं। अब जब मुसलमानों के पास कुछ ना बचा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और अब क्या था, अब एंटीओक का फॉल हो चुका था और एंटीओक क्रूसेडर्स के कब्जा में था। अब तुर्की की एक बहुत बड़ी फौज ने क्रूसेडर से बदला लेने की ठानी कि हम क्रूसेडर से वो ज़मीनें जो मुसलमानों के कब्जा में थी वो वापस ले लेंगे। और इस फौज को कमांड करने वाला एक गवर्नर था जिसका नाम कुरबुग्गा था। पहले इसने और इसकी आर्मी ने अटैक किया एडिसा पर जो बॉल्डविन के कब्जा में था, लेकिन ये उसका कुछ ना बिगाड़ पाया। फिर गवर्नर कुरबुग्गा ने सोचा कि पहले हम एंटीओक को फतह करेंगे, उसके बाद एडिसा को देखेंगे। क्रूसेडर्स की हालत बहुत ख़राब थी एंटीओक के अंदर।
क्रूसीडर्स फाकों पर थे और अब फंस चुके थे, ट्रैप हो चुके थे। क्रूसीडर्स इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि बैजेंटाइन एम्पायर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कितना घिर सकता है। तुर्की के कुछ मुसलमानों ने ये शरारत की और ये बात अफवाह की तरह फैलाना शुरू कर दी कि क्रूसीडर्स हार रहे हैं और मर रहे हैं और मुसलमान फौजें जीत रही हैं। ये बात बैजेंटाइन एम्पायर के बादशाह लेक्सिस कॉमनिनोस के पास पहुंची तो उसने अपनी सारी फौज वापस बुला ली, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि अगर तुर्किश आर्मी ने इन पर अटैक कर दिया तो इनका क्या होगा। इसको काफ़ी डर था कि अगर तुर्किश आर्मी वाकई में जीत रही है तो अगला शिकार इसकी कंट्री होगी। इसलिए इसने अपनी आर्मी को एंटीओक से बुलाकर अपने मुल्क की बाउंड्रीज पर लगा दिया ताकि जितना भी हो सके तुर्किश आर्मी से बचा जा सके। तभी कुछ ऐसा हुआ कि एंटीओक में लोगों को चमत्कारी तौर पर ऐसे प्रमाण मिले जिसमें यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के मतलब सलीबी प्रमाण मिले। इन प्रमाणों को देखने के बाद क्रूसीडर्स का मनोबल बढ़ गया और फिर से उन्होंने अपने आप को रिस्टोर किया कि यरूशलेम अब हमने लेकर रहना है मुसलमानों के कब्जा से। क्रूसीडर्स ने प्लान किया कि हम मुसलमानों को इस शहर से बाहर मिलेंगे जंग के लिए, क्योंकि उनकी नज़र में इस शहर की अहमियत बहुत बढ़ चुकी थी और वो अब मुसलमानों के नापाक कदम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और क्रूसीडर्स ने देखने शुरू कर दिए विजन्स, स्वर्गदूत और बहुत सारे सेंट्स। इनका जोश बहुत बढ़ चुका था और मुसलमान हैरान हो रहे थे कि इतनी मुसीबतों के बाद, इतने फाकों के बाद इनमें इतना जोश कैसे है। और क्रूसीडर्स गवर्नर कुर्बुका की आर्मी को चार्जअप करने लगे कि आओ हमारे साथ लड़ो और इस सिटी को ले लो। और मामला ऐसे हुआ जैसे ही क्रूसीडर्स उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों की फौज डर से पीछे हटने शुरू हो गई। गवर्नर कुर्बुका अपने कमांडर्स पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि अपने कमांडर्स की वजह से मैं जंग हार चुका हूँ, जबकि मुसलमानों की आर्मी 4 से 5 गुना ज़्यादा थी क्रूसीडर्स से। कमांडर कुर्बुका जबकि जंग हार चुका था और भागते वक्त इसने अपने टेंट्स को आग लगा दी ताकि इसकी फौज की सप्लाईज क्रूसीडर्स के हाथ ना लग जाए, कहीं क्रूसीडर इनकी सप्लाईज को यूज ना कर लें। रिवर ओरिएंट की वेस्ट साइड पर एंटीओक में माउंट सिल्पियस पर उस वक्त जंग चल रही थी, लेकिन जैसे ही रिवर ओरिएंट की वेस्ट साइड और एंटीओक के माउंट सिल्पियस पर लड़ने वाले मुसलमानों को ये पता चला कि कुर्बुका जो है वो भाग निकला है, तो माउंट सिल्पियस के मुसलमानों ने जहाद रोक दिया और उनका जहाद यहाँ ही दम तोड़ गया। यहाँ क्रूसीडर्स ने जहादियों की काफी मरम्मत की और ये क्रूसीडर्स के लिए एक बहुत बड़ी फतेह थी। जहादियों को ये पता चल चुका था कि अब यरूशलेम को लेने से क्रूसीडर्स को कोई नहीं रोक सकता। अब यरूशलेम की बारी थी। इन समर 1098 यरूशलेम फातिमा खिलाफत के कब्जा में था, जिसको मिस्र से कंट्रोल किया जाता था। फातिमियत खिलाफत ने यरूशलेम को तुर्की के हाथों से ले लिया, क्योंकि तुर्कियों को बार बार क्रूसीडर्स मौत की ठंडी हवा दिला चुके थे। एंटीओक को जीतने के बाद क्रूसीडर्स ने अपना पैर वहां जमा लिया ताकि कोई और मुस्लिम फौज आकर इन पर कब्जा न कर ले या हमला न कर ले। तभी अल इफ्ताल, ये चीफ मिनिस्टर था मिस्र का, इनकी दुश्मनी थी या ड्रामा था तुर्कियों के साथ, लेकिन इसने क्रूसीडर्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसने कोशिश की कि अलायंस की जाए और इसने कोशिश की कि अलायंस बनाई जाए क्रूसीडर्स के साथ। लेकिन क्रूसीडर्स ने इसकी ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि क्रूसीडर्स का सिर्फ एक ही मकसद था, यरूशलेम को आज़ाद देखना। क्रूसीडर्स को एंटीओक के अंदर 5 से 6 महीने हो चुके थे। इनके पास खाने का सामान भी बहुत कम था, इनके पास बेसिक सप्लाईज बहुत कम थी, जो कि आपसी लड़ाई का सबब बन रही थी। स्टीफन ऑफ बॉयज और ही ऑफ मॉर्मन डेज ने कहा कि हम वापस जाएंगे, मतलब हम अपने देश में वापस चले जाएंगे, और इस वजह से क्रूसीडर्स कम हो गए। और इसके साथ ही बहमाउंड ऑफ ट्रेंटो ने बैजेंटाइन एम्पायर से एंटीओक सिटी मांग ली अपने लिए, और उसने ओथ भी तोड़ दिया जो अलेक्सिस कॉमनिनोस के साथ किया था, सिर्फ जगहों की खातर।
बोहेमंड ऑफ ट्रेंटो ने ये दावा किया कि अलेक्सिस वस्कोम्निनोस ने पहले और तोड़ा था, क्रूसेडर्स की हेल्प ना करके, जब क्रूसेडर्स को हेल्प की जरूरत थी, जिसकी वजह से क्रूसेडर्स के अंदर कशमकश शुरू हो चुकी थी और इस तरह से क्रूसेडर्स कमजोर होते चले जा रहे थे। कोई क्रूसेडर्स को छोड़कर जा रहा था और कोई जगह के लालच में फंस चुका था। इसके साथ ही बिशप एडमर ऑफ लीपाई फौत हो गए किसी बीमारी की वजह से। इस बिशप ने बहुत मदद की थी क्रूसेडर्स की, इनको इकट्ठा करके रखा था और यही बिशप काउंसिल में स्पिरिचुअल लीडर भी था क्रूसेडर्स का। 11 दिसंबर 1098 में एंटीओक से थोड़ा दूर मुसलमानों की एक छोटी सी सल्तनत थी मार्ट अल नुमान के नाम से। यहाँ भी क्रूसेडर्स ने हमला किया और इसको भी एंटीओक के अंदर मिला लिया और बोहेमंड ऑफ ट्रेंटो को यहाँ रहने दिया ताकि वो अपने आप को यहाँ का प्रिंस डिक्लेयर करे। 13 जनवरी 1099 क्रूसेडर्स ने चलना शुरू कर दिया यरूशलेम की तरफ। जैसे ही वो फातमियत खिलाफत में गए तो यहाँ के मुसलमान हुक्मरान क्रूसेडर्स से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि क्रूसेडर्स कहीं हमें भी मार न डालें, इसलिए उन्होंने क्रूसेडर्स को रुपया, पैसा और खाना दिया ताकि वो उनकी जान बख्श दें। ये क्रूसेडर्स से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैसे ही ये लंबा सफर तय कर यरूशलेम के पास पहुंचे तो इन्होंने पाया कि तमाम पानी के कुओं के अंदर जहर मिला दिया गया है और मुसलमानों ने सारे दरख्त भी काट डाले थे और जानवर भी कोई वहां पर ना था। यहाँ कुछ भी ऐसा ना था जो क्रूसेडर्स की हेल्प कर सकता था। सब कुछ बर्बाद कर दिया गया था मुसलमानों की तरफ से। 7 जून 1099 में क्रूसेडर्स ने एक जगह ले ली यरूशलेम के करीब ही। जैसे ही ये जगह मुसलमानों से इनको वापस मिली, ये सभी जमीन पर गिर गए और खुशी से रोने लगे। लेकिन अभी भी उन्होंने असल चैलेंज को फेस करना था, यानी यरूशलेम को जीतना था। अब क्रूसेडर्स 12,000 से कम बचे थे जो कि शहर को घेरने के लिए काफी ना थे। 30 जून 1099 में यरूशलेम शहर की दीवारें काफी लंबी थीं। क्रूसेडर्स को किसी तरह पार करके इसके अंदर जाना था, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा ना था कि वो अंदर जा पाए, यानी इनके पास एक सीढ़ी भी ना थी। 4 दिन के बाद यानी 4 जुलाई 1099 में जाफा की बंदरगाह पर इनको फातमियत खिलाफत के 6 जहाज मिले लकड़ी के। अब क्रूसेडर्स ने उन्होंने जहाज़ों की लकड़ी को उखाड़ डाला और यरूशलेम की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये लकड़ी सीज टावर बनाने के लिए काफ़ी ना थी। किसी तरह से उन्होंने सीज टावर कंप्लीट किए और यरूशलेम के अंदर घुसने की कोशिश शुरू कर दी। रेमंड ऑफ थालुस साउथ वेस्ट साइड से, गॉडफ्रे ऑफ ब्लॉन नॉर्थ साइड से। 8 जुलाई 1099 में तमाम क्रूसेडर्स परमेश्वर को याद करते हुए उन्होंने माउंट ऑलिव पर प्रेयर की और वो यही दुआ कर रहे थे कि परमेश्वर हमें यरूशलेम किसी तरह से हमारे हाथ में कर दे। हमले की रात गॉडफ्रे ऑफ ब्लॉन ने सीज टावर को नॉर्थ साइड यानी ऊपर की तरफ ले गया जहां बहुत कम फौज थी मुसलमानों की। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 15 जुलाई 1099 गॉडफ्रे कामयाब हो गए शहर के अंदर दाखिल होने में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ब्रिज हेड बना लिया था जिससे वो अंदर आसानी से जा सकते थे। जल्द ही वो अंदर पहुंच गए और मुसलमानों की मरम्मत करना शुरू कर दी। इन्होंने कोई गली कोई चौराहा न छोड़ा जहां उन्होंने मुसलमानों की मरम्मत ना की हो। जो भी क्रूसेडर्स का रास्ता रोकने या क्रूसेडर्स के सामने आने की कोशिश करता था वो मारा जाता था। आखिरकार यरूशलेम अब क्रूसेडर्स के कब्जा में आ चुका था। 4 हफ्ते तक फातमियत खिलाफत दोबारा कोशिश करती रही कि क्रूसेडर्स के साथ लड़ के यरूशलेम को वापस ले लिया जाए। इस जंग का नाम बैटल ऑफ एस्कलोन था। क्रूसेडर्स ने मुसलमानों को मार मार कर उनको नानी याद दिलवा दी और उसके कुछ टाइम के बाद बहुत सारे क्रूसेडर्स वापस यूरोप चले गए। सिर्फ 300 क्रूसेडर्स यरूशलेम में रहे डिफेंस करने के लिए। पोप अर्बन ये खबर ना सुन पाया कि यरूशलेम आज़ाद हो गया है, क्योंकि वो यरूशलेम के आज़ाद होने से 2 हफ्ते पहले ही फौत हो गए थे। आ रही थी। इस वीडियो का कंटेंट बुक ऑफ स्प्रे पब्लिशिंग से लिया गया है, जो हिस्ट्री के लिहाज से बहुत ऑथेंटिक साइट है और इनका काम हिस्टोरिक एविडेंस को लेकर अपनी किताबों के अंदर लिखना होता है।
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैल सके और उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है और वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो सके।